علی محمد خان صاحب، سب سے پہلے تو ایک طرف حکومت کی قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہو گیا، دوسری طرف اب یہ اے پی سی بلانے کا آپ کا ارادہ ہے، کیا توقعات ہیں اور کیا ایسی اے پی سی کا فائدہ ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ رمضان جو امن کا مہینہ ہے اور کسی بھی مسلمان کے لیے ایک مقدس مہینہ ہے، بلکہ میں نے تو جو دیکھا ہے جو نان مسلمز ہیں پاکستان میں تو بالخصوص، لیکن پاکستان کے باہر وہ بھی رمضان کی ایک رسپیکٹ کرتے ہیں۔ اس مہینے میں جو خون بہایا گیا ہے، رحمان صاحب، انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ ایک انسان ایسے کر کیسے سکتا ہے۔ جو مولانا حامد الحق صاحب کے ساتھ ہوا رمضان کے سٹارٹ میں، بالکل اس سے تھوڑا سا پہلے، اور اس کے بعد جو مفتی شاکر صاحب ہمارے یہاں خیبر پختونخوا سائٹ پہ، اور پھر اس کے بعد جو نوشی میں ہوا بس کے ساتھ، جو جعفر ایکسپریس کے ساتھ ہوا، جو بنو کینٹ میں ہوا، جو بلوچستان میں مولانا صاحب کے ساتھ، ان کی جمعیت کے جماعت کے ہیں، ان کے ساتھ ہوا، یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے اس سے سب کو بڑی فکر ہے۔ ہماری توقع یہ تھی کہ اگر حکومت اس پہ جو کال کیا تھا میٹنگ، اس میں اگر وہ زیادہ سنجیدگی کا، زیادہ میچورٹی کا مظاہرہ کرتے اور جناب عمران خان صاحب کو انگیج کرتے، پھر ان پہ آ سکتے ہیں۔ ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کوئی آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ اس وجہ سے آپ ان کے کیسز ختم کریں، ان کو فری کر رہے، nobody is saying this۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کو لے آتے، لانا تو درکنار، ہمیں ان تک ایکسیس تک وقت نہیں دیا گیا۔ بہرحال وہ تو جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ میرے خیال میں آگے سے میچورٹی سے کرنا چاہیے کہ اگر آپ کو دیکھیں، اس وقت پالیٹکس نہیں ہو رہی رحمان صاحب کہ کوئی سیٹ ہار رہا ہے، کوئی جیت رہا ہے، دان جو ہوگی فلانا ہے۔ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ ہیومن لائفز، انسنٹ لائفز، لوگوں کے گلے کٹ رہے ہیں، بم دھماکے ہو رہے ہیں۔ تو اس میں سمجھتا ہوں کہ دونوں طرف سے زیادہ سنجیدگی کی ضرورت ہے۔ اور خان صاحب نے انکار بالکل نہیں کیا۔ یہ میں بتا دوں، میری ملاقات نہیں ہوئی، لیکن جو میں نے ان کے بیانات سنے ہیں جو باہر آئے ہیں، بالکل اس سے کلیئر ہے کہ خان صاحب نے یہ نہیں کہا کہ میں ریڈی نہیں ہوں اس پہ بیٹھنے کے لیے۔ انہوں نے کہا آپ نے مجھے بلایا ہی نہیں، کہ آپ نے جو میرے لوگ ہیں پہلے ان کو مجھ تک رسائی تو دیتے۔ اب جو اے پی سی کی آپ فرما رہے ہیں، جو ہماری طرف سے بات آئی ہے، اس کا نہیں مجھے پتا، پولیٹیکل کمیٹی یا کور کمیٹی میں تفصیل سے تو نہیں ڈسکس ہوا، لیکن اگر ہوتی ہے تو اچھی بات ہے۔ میری تجویز ان کو یہ ہوگی، باقی تو لیڈرشپ کا فیصلہ ہے، لیکن اگر میرے سے تجویز مانگتے ہیں، میری تجویز یہ ہوگی کہ حکومت نے تو سنجیدگی نہیں دکھائی، ہمیں دکھانی چاہیے۔ اب ان کو وقت سے پہلے پراپر ٹائم پہ ان کو انوائٹ کریں، حکومتی جماعتوں کو سارے، کیونکہ مسئلہ کسی سیاسی جماعت کا نہیں ہے، اٹس اباؤٹ پاکستان، the lives of the people of Pakistan are at stake۔ بالکل ٹھیک، تو سب کو اس پہ بیٹھنا چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے آپ نے کہا، لیکن اس میں دیکھیے، ایک تو پاکستان تحریک انصاف کا موقف تو ہے، لیکن یہ حکومت سے پوچھا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ سیکیورٹی بریفنگ تھی، اور اس بریفنگ کے لیے عمران خان سے ملاقات کی پارٹی کو کوئی ضرورت نہیں ہونی چاہیے تھی۔ تو اگر آپ چلے جاتے، بریفنگ میں بیٹھ جاتے، وہاں پہ سن لیتے کیا بات ہو رہی ہے، تو کیا یہ کرنا مشکل تھا پاکستان تحریک انصاف کے لیے؟ لیکن اب لکیر پیٹنے سے کیا فائدہ؟ ہم ہمیشہ یہی کرتے ہیں۔ 71 میں پورا ملک ہمارا ٹوٹ گیا، آج تک ہم یہ فیصلہ نہیں کر سکے ہمیں ہم سے بنیادی غلطیاں کہاں کہاں کس طریقے سے، جو ایک کمیٹی رپورٹ بنی تھی اس کو زمانے تک صغیر راز میں رکھا گیا، یعنی کہ ہمیں یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے اور کیوں ہوا۔ ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ ملاقات نہیں ہو سکتی تھی۔ ہماری تو جو کمیٹی تھی، جو فوری میٹنگ ہوئی تھی، اس نے تو کہا تھا کہ ہم جانا چاہتے ہیں، ہم اس میں بیٹھنا چاہتے ہیں۔ جو خان صاحب کا جو ویژن ہے دہشت گردی پہ، وہ ہم سب کو پتا ہے، ان کا مین نکات سب کو پتا ہے، لیکن اس میں ساتھ یہ بھی ایک ریکویسٹ حکومت کو دی کہ ہمیں اس سے پہلے آپ اجازت دیں کہ ہم خان صاحب سے ایک ملاقات کریں۔ مجھے آپ ایک بات بتائیں کامن سینس کی، یہ جو حکومتی لوگ ادھر بیٹھے ہیں، یہ جتنے بھی آئے ہوئے تھے بشمول شہباز صاحب، کیا حکومتی ٹیم کی اپنے وزیر اعظم سے کنسلٹیشن نہیں ہوئی ہوگی؟ یا جو ملٹری لیڈرشپ آئی تھی اس میں آرمی چیف صاحب جو تشریف لائے ہیں، کیا ان کی اپنی ٹیم سے کنسلٹیشن نہیں ہوئی ہوگی؟ یا جو مولانا فضل الرحمان صاحب تشریف لے گئے ہیں، انہوں نے اپنی جماعت سے کنسلٹیشن نہیں کی ہوگی؟ تو یہ پھر صرف تحریک انصاف کو کیوں سنگل آؤٹ کیا جاتا ہے کہ لیڈر کو اپنے اندر اخبار بند، ٹی وی بند، ملاقات بند، سیاسی لیڈرشپ سے ملاقات بند؟ چاہیے آپ کو قومی اتفاق کہہ رہا ہے، یعنی دیکھیں آئرنی آف دا فیٹ، لک ایٹ نو، اتنے ہم ارسطو بیٹھے ہیں کہ چاہیے ہمیں قومی یکجہتی، اور انا کے ہمالیہ کے اوپر بیٹھے ہوئے کہ نہیں ہمیں یکجہتی چاہیے، سارے آ جاؤ ہمارے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، لیکن لیڈر سے باہر نہیں آنے دینا، لیڈر کو باہر نہیں آنے دینا۔ کم آن،
रुआ। अच्छा, अब इस मुल्क के लिए लेकिन अब इसका हल क्या है? देखिए अली महमूद खान साहब, मेरी गुजारिश सुनिएगा, हल क्या है? क्योंकि देखिए खैबर पख्तूनख्वा एक ऐसा सूबा है जो सबसे ज्यादा मुतासर है दहशत गर्दी से। हुकूमत ने अगर कुछ करना है, ना सूबाई हुकूमत वफाक की मदद के बगैर कुछ कर सकती है, ना वफाक सूबाई हुकूमत की मदद के बगैर कुछ कर सकता है। तो पॉलिटिकल कंसेंसस तो चलें अपनी जगह पर, लेकिन इंतजामी तौर पर तो इन दोनों को एक दूसरे की सपोर्ट चाहिए। तो इसका हल क्या है फिर? हल रहमान साहब रॉकेट साइंस या कोई बहुत मुश्किल नहीं है। 2-3-4 बातें मैं करूंगा। पहली बात तो यह है कि सबको अपना दिल साफ करना पड़ेगा एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के साथ। इसकी वजह यह है कि अगर हमारी आपस की सियासी चपकलिश है या एस्टैब्लिशमेंट और सियासी फोर्सेस, टू बी स्पेसिफिक, एस्टैब्लिशमेंट और तरीके साहब के बीच में अगर फासले हैं या मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, या कौम के और अदारों के बीच में अगर फासला है, या हुकूमत या अपोजिशन के बीच में अगर मिसअंडरस्टैंडिंग है या मुखासमत है, उसकी प्राइस कौन पे कर रहा है? आप मुझे बताएं। जो मैन ऑन ग्राउंड ना, जो फुट सोल्जर है आपका, जी, जो सिपाही है ना, लोग पे कर रहे हैं इस पोलराइजेशन की, जो जी खून से अपनी वो कीमत चुका रहे हैं ना। देखें आम लोग शहीद हो रहे हैं। ये भी मेरे ख्याल में हसनैन है, सुबह मैंने उस पर ट्वीट किया, कुछ लोगों को बड़ा बुरा लगा है। क्या शहीद के लिए हमने पाकिस्तान के जो शहीद होता है उसके लिए दुआ नहीं करनी? सिविल मिलिट्री इंबैलेंस अल्लाह के बंदो एक और चीज है कि पॉलिटिक्स में एस्टैब्लिशमेंट का, फौज का किरदार नहीं होना चाहिए। वो एक और डिबेट है। खान साहब ने हमेशा ये बात की है कि मुल्क भी मेरा है और फौज भी मेरी है। मेरी फौज का अगर कोई जवान शहीद होगा, हम उसकी फातिहा भी पढ़ेंगे और उसको अप्रिशिएट भी करेंगे। ये इमरान खान साहब भी करते हैं, हम भी करेंगे। अगर किसी का इस पे दिल दुखता है तो अल्लाह करे उसका दिल टूट के टुकड़े टुकड़े हो जाए। हमारी सियासत ये नहीं है कि हम अपनी फौज या शहीदों के खिलाफ, ये शहीद हम सबके शहीद हैं। अगर कोई सिविलियन शहीद होता है, अगर कोई सियासतदान शहीद होता है, आलिम शहीद होता है, फौजी, पुलिस, देखिए मैं हामिद उल हक साहब की शहादत पे गया हूँ, उनके फातिहा पे गया हूँ, मैं मुफ्ती शाकिर साहब के लिए दुआ की है। जितने सियासी लोग शहीद होते हैं, फौजी अगर कोई शहीद होता है मेरे मुल्क के लिए जो जान देगा, चाहे वो फौजी है, चाहे वो सिपाही है, चाहे वो सिविलियन है, सियासतदान है, या आलिम है, या मौलवी है, कोई भी है, आलिम दीन है, कोई जर्नलिस्ट है, आई विल स्टैंड विद हिम। ये क्या बात होगी कि जनाब? तो देखिए इन चीजों को देखने के लिए कि हमारी इन चीजों की वजह से आपका खून बह रहा है, आपके नौजवान शहीद हो रहे हैं, आपके सिविलियन शहीद हो रहे हैं, फौजी शहीद हो रहे हैं। अब इसके लिए मेहरबानी फरमाया, आपने क्या हल है? हल बड़ा सिंपल है। इमरान खान साहब को जो इस पे विजन है मैं वो रख देता हूँ। खान साहब कहते हैं जो हमने 10-12 साल में उनसे जो सीखा है वो ये कि वो बड़े बड़े मिलिट्री ऑपरेशन के हाथ में नहीं है। जैसे मास एक्सोडस हो, जैसे आईडीपीज बने, लोगों को अपने इलाके खाली करके छोड़ने पड़े, वहां लोग तबाह बर्बाद हो जाते हैं, तंबुओं में टेंटों में रहते हैं, बच्चे तबाह, पर्दा खत्म सारा। हाँ, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन आप ऑलरेडी कर रहे हैं। अब इसमें अगर आपने कोई मजीद ताउन चाहिए वो आप वज़ीर आला से बात कर लें। बड़े ऑपरेशन के मतलब पूरा जिला, पूरे डिवीजन खाली करना उसके हक में नहीं है। दूसरी चीज देखिए, जो आपसे लड़ रहा है, जो गोली मार रहा है, उसको भी आपने तो उसको गोली मारनी है जो आपको गोली मार रहा है। लेकिन जो सियासी फोर्सेस हैं उनको तो एंगेज करें। बलोचिस्तान में जो नेशनलिस्ट हैं या पख्तूनख्वा में जो नेशनलिस्ट हैं, उनसे हम सियासी लोग एंगेज करें। अच्छा, किसी से मियां साहब की जमात का ताल्लुक होगा, किसी से मौलाना फजल रहमान साहब का जमात इस्लाम, किसी से हमारा होगा। हम इस मुल्क में हुकूमत कर बैठे हैं, हमारी सूबे में आज भी हुकूमत है, किसी से हमारा ताल्लुक होगा, हम उनको बैठाते हैं, बात करते हैं और दहशत गर्दों को अकेला करते हैं। तो अब ये कोई एक नशिस्त में होने वाली बात है, इसके लिए आप इमरान खान साहब को लाइए। लेकिन इसमें देखिए जो कौमी, अली महमूद खान साहब देखिए जो कौमी बयानियां बनाने की बात हो रही है, अब देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गिले शिकवे होंगे एस्टैब्लिशमेंट से, वो सियासी मामलात हैं, लेकिन इस तरह के वाकयात के बाद सानिया जाफर एक्सप्रेस हो तो ऐसा लगता है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर इल्ज़ाम यह लगता है कि वो स्कोर सेटल करने की कोशिश करती है और वो सोशल मीडिया का उसका इस्तेमाल किया जाता है। अभी भी मुझे तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं, कोई JIT की भी इन्वेस्टिगेशंस चल रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अकाउंट्स के हवाले से। इसको आप किस तरह से देखते हैं? ये इशू क्या पार्टी का है, या जिस तरह से पार्टी को देखा जाता है उनकी तरफ से ये इशू है कि सोशल मीडिया के हवाले से इस तरह से बातें जो है वो की जाती हैं, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर यह तनकीद की जाती है? बल्कि अक्सर मैं खुद भी शिकार रहता हूँ मुख्तलिफ सोशल मीडिया अकाउंट्स के, पत्नी अपने पराए जो भी हैं, किसी को कोई चीज अच्छी नहीं लगती, किसी को कोई चीज अच्छी नहीं लगती, अपना गला काट के देंगे फिर कहेंगे वफादार था। ये छोड़ें इस बहस को। लेकिन हमारी जमात के जो मेन स्टेक होल्डर हैं, जो ऑफिस बियरर्स हैं, रजिस्टर गवर्नर हैं,
सलमान अकरम राजा हैं, अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान, ये 3 बड़े ओहदे हो गए, या कोई और वजीर आला गंडापुर को रख लें साथ। अब खान साहब खुद तो वो तो बेचारे जेल में, वो तो चीजों को नहीं मॉनिटर कर सकते ना कि किस में क्या चीज आ गई। वो तो एक बात कर देते हैं कि इस पे आप बात ट्वीट कीजिए, ठीक हो गया। अब उसको मैं कैसे परसीव करती हूँ, वो कैसे परसीव करता है, या वो कैसे परसीव करती है, हर किसी की अपनी अपनी सोच है। देखें, जो हमारे चेयरमैन है, जो हमारे सेक्रेटरी जनरल है, जो हमारे अपोजिशन लीडर है, वजीर आला है, या और मेन ऑफिस लीडर है, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है, हो गया, कोई किसी को ये डायरेक्शन खुदा न खास्ता नहीं है कि आप अपने इदारे को हिट करें। सिर्फ ये होता है कि सिविल मिलिट्री इम्बैलेंस या सियासत में फौज का या इदारों का जो किरदार है उस पर हमारी बात होती है, वो हम सबको पता है, उस पर कोई भी जमात उस पर बात करती है। अब इस सारे क्राइसिस में अगर किसी ने गलत किया है, अगर किसी ने अपने शहीदों को क्वेश्चन किया है, अगर किसी ने कोई ऐसी बात की है जिससे दहशतगर्दी को, दहशतगर्दों को सपोर्ट मिली है, उसको कौन सपोर्ट करता है? हमारी जमात ने तो किसी को नहीं कहा। और लाखों करोड़ों पाकिस्तानी हैं, हर किसी के हाथ में स्मार्टफोन है। आप कैसे कह सकते हैं कि पीटीआई का वर्कर है? फिर फेक अकाउंट्स हैं, पीटीआई का झंडा लगा के, खान साहब की तस्वीर लगा के दुनिया जहान का बकवास करते हैं। क्या वो पीटीआई वर्कर होता है? क्या इस बात की क्या सबूत है? हिंदुस्तान से कोई नहीं कर सकता, बाहर से नहीं कर सकता। ये कहाँ लिखा हुआ है कि इमरान खान ने किसी को कहा है कि मेरी फौज को या मेरे मुल्क को या मेरी उसको टारगेट करो? क्यों वो कहेगा? क्यों सलमान राजा साहब कहेंगे? क्यों जो है बरसो गौर कहेगा? क्यों उमर अयूब कहेगा? तो ये देखें, इस तरह नहीं है। राइट, लास्टली मुझे सिर्फ एक और चीज, क्योंकि ये क्रिटिसिज्म होती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे कि वो खान साहब के लिए कोई एनआरओ चाहती है, और जब भी कोई ऐसा मामला होता है तो साथ ही कहा जाता है हमारी मुलाकात करा दें, केसेस को खत्म कर दें। इस तनकीद को आप किस तरह से देखते हैं? रहमान साहब, एनआरओ उसको आप नहीं कह सकते। देखें, जो चीज जिस तरह होती है उसी को उसी तरह वापस होना है। अगर तो ये केसेस, इधर दिल पे हाथ सब रख के बताएं, अगर तो ये केसेस जेन्युइन है, अगर इमरान खान पे 250-300 केसेस जेन्युइन बने हैं, जो कि एक दिन वजीर आजम था और कुछ अरसे बाद अचानक 300 केसेस खड़े हो गए, मतलब अचानक का आसमान से केसेस नाजिल हो गए। देखिए, पॉलिटिकल केसेस हैं, पॉलिटिकल केसेस पॉलिटिकल रास्ते से वापस होंगे। मैं क्लियर ये कह रहा हूं। अगर हमारी जमात में कोई लगी लिपटी रखता है या कोई आयम बायशाएं करता है, मैं आयम बायशाएं नहीं कर रहा, मैं क्लियर बात कर रहा हूं। इमरान खान क्यों अदालतों से निकले? अगर उस पर आपने जन्म केसेस बनाए हैं, साइफर खत्म हो गया, तोशा खाना का वो 1 खत्म हो गया, इद्दत केस खत्म हो गया, कितने केसेस से खान साहब जो है उसमें से बरी हुए हैं। आपने 250-300 केसेस सियासी बनाए हैं, तो फिर सियासत के जरिए आपने इसको ठीक भी करना है। आपको इस आदमी को बाहर लेके आना है, वो इस कौम का लीडर है। जब तक वो बाहर नहीं आता, आप कौन सी कौमियत कहती? यू टॉकिंग, आप ख्याल की जन्नत में रहते हैं, आप ख्याली दुनिया में रहते हैं। असली दुनिया में आइए। अगर कौम की सपोर्ट चाहिए तो कौम के लीडर को बाहर लाइए। ठीक है, राइट, बहुत शुक्रिया। अली मोहम्मद खान साहब हमारे मौजूद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, बात कर रहे थे। प्रोग्राम में भी एक ब्रेक शामिल कर रहा हूं, वापस आ रहे हैं इस ब्रेक के बाद।